Good to see you all. This is Hershey, your science educator. Today we are doing chapter number 5, Conservation of Plants and Animals. So let's discuss the chapter content. The contents are biodiversity. What is biodiversity? What does it mean? And biodiversity in forest. Threats to biodiversity, consequences of deforestation, wildlife in danger, conservation of forest and wildlife, endemic species, and lastly red data book, right? So before starting the chapter, we have a warm-up exercise to do. So Aditi has collected some pictures cards of animals. Where are these animals likely to be found? Write your answer in the boxes provided. So 4 pictures have been given to you. Just closely observe these pictures. You all are familiar with these animals, right? So can you tell that these animals are found where? First one, lion. So lion, where it lives? In the forest. Next is camel. So camel would be found in desert. Absolutely correct. Next is shark. You'll find the shark in sea or ocean water. And lastly, this is Arctic fox, right? And Arctic fox are found in the polar regions, right? जहाँ बहुत ज़्यादा स्नो होती है, polar regions में मिलती हैं Arctic foxes. Right, so let's begin with the chapter introduction. Organisms do not exist in isolation. Isolation means सिर्फ अकेले survive करना possible नहीं है. Right, so rather they rely on their surroundings for survival. तो सर्वाइवल के लिए जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी सराउंडिंग्स पर डिपेंड होते हैं. बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिक्वायर फूड एंड अदर रिसोर्सेज फ्रॉम द एनवायरनमेंट फॉर सर्वाइवल. सो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूडिंग ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, like all living organisms need food, water and air to breathe. तो ये क्या है? ये सब surroundings में मिलती है. So essential elements like air, water and soil constitute integral component of our surroundings. So integral means fundamental components or essential components, right? So thus the existence of an organism is influenced by the living things and non-living things in its vicinity. So living things like plants, animals, microorganisms and non-living things क्या हुई? Non-living things like water, air, soil, ये सब non-living things के examples हैं. So an ecosystem encompasses all the flora and fauna. So you all are familiar with flora and fauna. Flora क्या है? Fauna क्या है? Flora means plants and fauna means animals. And microorganisms are those organisms that are not visible to you. You are not able to see the microorganism with your normal eyes. You need microscope to see them, right? तो इसीलिए इनको microorganisms बोला जाता है. So within a particular एरिया, सो एक पर्टिकुलर एरिया में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको मिलकर क्या बनता है? एक इकोसिस्टम बनता है. सो अलॉन्ग विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स लाइक क्लाइमेट, सॉइल, रिवर्स, डेल्टाज एंड मोर, राइट? सो ये सब चीज़ें क्या है? ये नॉन लिविंग थिंग्स है. जो नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स मिलकर क्या बनाती हैं? इकोसिस्टम बनाती हैं एक पर्टिकुलर area में. So are you getting? Very good. So an ecosystem has many different species of organisms. अब ecosystem में different species होती है. Different species of animals, different species of microorganisms, different species of plants. अब species क्या होती हैं? So a species is a group of organisms that are similar to each other. एक दूसरे से मिलते हैं, राइट? एंड कैन रिप्रोड्यूस विद इन द
ग्रुप, तो एक दूसरे से मिलते हैं और रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं देयर यंग वंस, तो इनको बोलते हैं स्पीशीज। ठीक है, सो नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को अगर हम ब्रेक करें, सो डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी एंड बायो मीन्स लिविंग थिंग्स, राइट। जो लाइफ में वैरायटी, दिस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। सो व्हाइल देयर आर फंडामेंटल सिमिलैरिटीज अमंग ऑल ऑर्गेनिजम्स, नेचर शोकेसेस अ कैप्टिवेटिंग एरे of diverse life forms. A particular ecosystem hosts a broad spectrum of different organisms types. For instance, a rainforest ecosystem can host tens of thousands of distinct species. तो इसका कहने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर रीजन में आपको डिफरेंट स्पीशीज मिलेंगे, डिफरेंट स्पीशीज इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट स्पीशीज इन प्लांट्स, डिफरेंट स्पीशीज इन एनिमल्स, राइट। और यही अगर आप दूसरे रीजन में जाएंगे, लेट्स से अगर आप कंपेयर करते हैं एक डेजर्ट रीजन को और एक कोस्टल रीजन को, तो आपको वहाँ पर वैरायटी मिलेगी, राइट। सो डेजर्ट में डिफरेंट प्लांट्स ग्रो होते हैं, डिफरेंट एनिमल्स हैं, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वेयर एज अगर आप कोस्टल एरियाज में जाएंगे तो वहाँ डिफरेंट लिविंग थिंग्स होंगे, वहाँ डिफरेंट यानी डिफरेंट वैरायटी मिलेगी आपको। So even in seemingly barren environment like a desert where the visible presence of plants and animals may be limited, there exist thousands of different types of microorganisms, right? So different regions में different variety आपको मिलती है। The variety of organisms in a region, this is referred to as biodiversity. Diversity means variety, bio means life, तो variety in life यानी different varieties in flora and fauna, so of the region. The plants found in the region form the flora and the animals form the fauna of the region, so they together form the biodiversity of the एरिया। सो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं, और वैरायटी डिफरेंट डिफरेंट होती है, इसलिए इसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। सो इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया हैज अ वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम्स ranging from tropical rainforest to the alpine vegetation and from temperate forest to the coastal wetlands. So इन सब के बारे में डिफरेंट फॉरेस्ट के बारे में आपने ऑलरेडी SST में पढ़ा हुआ है। सो यू ऑल आर फैमिलियर विद ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट कौन से होते हैं, वेटलैंड्स क्या होते हैं, राइट। सो रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ बोथ फ्लोरा एंड फौना एग्जिस्ट इन दीज इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम क्या हुआ, अगर हम उसको समराइज करते हैं, सो इकोसिस्टम होता है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, दोनों को मिलाकर इकोसिस्टम बनता है। एंड बायोडाइवर्सिटी क्या है, वैरायटी इन फ्लोरा एंड फौना, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी जो वैरायटी होती है, दिस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। सो वी हैव अ एक्टिविटी है, ट्राई टू आइडेंटिफाई द फ्लोरा एंड फौना इन योर region. Take the help of the teachers to make a list, right? अब आप अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं और अपने सराउंडिंग्स में फ्लोरा एंड फौना को लिस्ट कर सकते हैं, राइट। सो नाउ वी हैव नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्यों ज़रूरी है बायोडाइवर्सिटी और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, राइट। सो विद इन एन इकोसिस्टम द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज इंटरडिपेंडेंट। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, राइट। अभी हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर्स में, हमने पढ़ा था फूड चेन के बारे में, फूड वेब के बारे में। तो इसमें क्या होता है, एक एनिमल दूसरे एनिमल का फूड होता है, राइट। तो सभी ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरकनेक्टेड होते हैं। अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ कनेक्शंस एग्जिस्ट अमंग ऑर्गेनिजम्स थ्रू फूड वेब्स। और जब डिफरेंट डिफरेंट फूड चेन मिलती हैं तो क्या फॉर्म होते हैं, फूड वेब्स बनते हैं। सो एनिमल्स रिलाई ऑन प्लांट्स फॉर फूड एंड शेल्टर। एनिमल्स को क्या चाहिए, प्लांट से, एनिमल्स को प्लांट से फूड चाहिए और साथ साथ शेल्टर चाहिए, क्योंकि बहुत सारे
एनिमल्स जो होते हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं, कुछ प्लांट्स कुछ ट्रीज के ऊपर रहते हैं, कुछ नीचे रहते हैं, कुछ ट्रीज के अंदर रहते हैं, राइट। सो फूड एंड शेल्टर के लिए एनिमल्स डिपेंडेंट होते हैं किस पर, प्लांट्स पर। एंड वाइल प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर द प्रोसेस सच एज पॉलिनेशन, इसके बारे में भी हमने पढ़ा है, पॉलिनेशन, रिप्रोडक्शन एंड सीड डिस्पर्सल। तो इन तीनों प्रोसेसेस के लिए प्लांट्स किस पर डिपेंडेंट है, एनिमल्स पर डिपेंडेंट है, क्योंकि प्लांट्स क्या है, प्लांट्स तो फिक्स्ड है, दे कैन नॉट मूव, दे आर स्टेशनरी। तो क्या होता है कि प्लांट्स को सीड डिस्पर्सल के लिए, पॉलिनेशन के लिए कुछ इंसेक्ट्स, कुछ एनिमल की हेल्प से ही ये सब प्रोसेसेस हो पाते हैं। सो फंगी एंड बैक्टीरिया प्ले अ क्रूशियल रोल by decomposing organism, enriching the soil with nutrients the plants required for growth, right? So microorganisms like फंगी है, बैक्टीरिया है, ये सब क्या है, हमारे डीकम्पोजर्स हैं। डीकम्पोजर्स मीन्स दे आर ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इनटू दी स्मॉलर वन, ताकि वो सॉइल में मिक्स हो सके और फिर प्लांट्स उसको दोबारा से यूज कर सके। सो कॉन्सिक्वेंटली ऑन एन इकोसिस्टम फंक्शंस इन हार्मोनियस सिस्टम where each organisms play a vital role. The disruption or loss of even a few organisms can upset this balance, resulting in harm of the entire ecosystem. So हर एलिमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है इकोसिस्टम में, राइट। अगर एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई एनिमल है, अगर वो कंप्लीटली ख़त्म हो जाए फूड चेन से, फूड वेब से, तो क्या होगा, उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होंगे, क्योंकि सारी फूड चेन क्या है, सारे एलिमेंट्स फूड चेन में नेसेसरी हैं, राइट। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, therefore biodiversity is important for the sustenance of ecosystem. It provides a wide range of materials and food for survival, prevent extinction of species and allows organisms to adapt to changes in the एनवायरमेंट। तो किस किस चीज़ों के लिए ज़रूरी है इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम में जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं वो एक दूसरे का क्या है, फूड है। तो फूड फॉर सर्वाइवल है, ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट है प्रिवेंट एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज, राइट। सो अगर फूड चेन में क्या होता है कि एक एनिमल दूसरे को खाता है, तो क्या होता है, उनके नंबर्स को भी मेंटेन होते हैं। ऐसा नहीं कि एक एनिमल तो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है और दूसरा एनिमल एक्सटिंक्ट हो गया, राइट। और अलाउज द ऑर्गेनिजम्स टू अडेप्ट टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। जो अडेप्शन बहुत ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए, एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको अडेप्ट करना इज़ वेरी नेसेसरी। सो द फ्लोरा एंड फौना ऑफ अ कंट्री आर वेरी इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। व्हाई वी आर सेइंग इट इज़ रिन्यूएबल, क्योंकि प्लांट अपने आप ग्रो हो जाते हैं। अगर आप प्लांट्स को छोड़ दें, लैंड को अगर आपने खाली छोड़ दिया, सो कुछ मंथ्स बाद आप देखोगे कि वहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स उग जाएंगे, अपने आप ही ग्रो कर जाएंगे, क्योंकि सीड डिस्पर्सल होता है, पॉलिनेशन होता है, सो उसके थ्रू दोबारा से न्यू प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इज देयरफॉर एन इम्पॉर्टेंट टास्क। तो बायोडाइवर्सिटी इसलिए इम्पॉर्टेंट है। नाउ बायोडाइवर्सिटी इन फॉरेस्ट, जंगल की बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा वैरायटी इन फ्लोरा एंड फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो अबाउट 1/5 ऑफ द एरिया ऑफ आवर कंट्री इज अंडर फॉरेस्ट कवर। हमारी कंट्री को अगर आप 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो 5 इक्वल पार्ट्स में से 1 पार्ट, राइट, किससे कवर है, फॉरेस्ट से कवर है, जंगल है उस पर। सो दिस इज एस्टिमेटेड अबाउट 67.71 मिलियन हेक्टेयर, विच इज 20.6% ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया। तो अगर आप इसको 100% मानेंगे, सो उसमें से 20% हमारे 20.6% क्या है, फॉरेस्ट है। सो दैट इज वाई इट इज सेड दैट 1/5 एरिया ऑफ total land of India is covered with forest. So you have already read in class A7 that forests are useful to us because of the following reasons.
क्या क्या यूजेस है फॉरेस्ट के? फर्स्ट, रिसोर्सेज यील्ड, फॉरेस्ट प्रोवाइड वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स सच एज टिम्बर फॉर कंस्ट्रक्शन। लकड़ी कहाँ से मिलती है हमें? ऑफ कोर्स फॉरेस्ट से मिलती है। एंड फॉर फर्नीचर, और लकड़ी से हम फर्नीचर भी बनाते हैं। वुड को हम एज अ फ्यूल भी यूज़ करते हैं। और वुड पल्प से क्या बनता है? पेपर भी बनता है। इसके अलावा लेटेक्स फॉर रबर मैन्युफैक्चरिंग। लेटेक्स ऑल्दो इट इज़ अ वेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, लेकिन वो हमारे लिए यूजफुल है बिकॉज वी आर मेकिंग द glue with rubber with this latex, right? So as well as substances like turpentine. turpentine एक ऑयल होता है जो कि पेंट्स में यूज़ होता है, कुछ कुछ कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ होता है। इसके अलावा रेजिन, गम, लैक एंड मेडिसिनल प्लांट्स। सो इतनी सब चीज़ें प्लांट्स हमें प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। सो फॉरेस्ट प्ले अ वाइटल रोल इन सेफ गार्डिंग वाइल्ड लाइफ एज मेनी स्पीशीज डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट फॉर बोथ फूड एंड शेल्टर। सो फॉरेस्ट में क्या है? वाइल्ड लाइफ को सेफ गार्ड करते हैं, राइट? एनिमल्स को सेफ गार्ड करते हैं, फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है एनवायरमेंटल बैलेंस। फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट टू मेंटेनिंग द इक्विलिब्रियम बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द atmosphere. Through the process of photosynthesis, plants absorb carbon dioxide and release oxygen, thus playing a crucial role in regulating these essential gases. तो ये हम पढ़ते आ रहे हैं जूनियर क्लासेस से कि बैलेंस किसका बैलेंस करते हैं? प्लांट्स और ट्रीज और फॉरेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन यूज होता है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेंगे, फूड बनाएंगे और क्या रिलीज करेंगे? ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। नेक्स्ट इज टेम्परेचर रेगुलेशन। सो फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट टू रेगुलेटिंग द अर्थ्स टेम्परेचर ऑब्जर्वबली। Forested areas near urban centers tend to be cooler than the city itself, right? So अगर आप देखो कि गाँव में अगर आप जाते हो, रूरल एरियाज में अगर आप जाते हो जहाँ पर ग्रीनरी ज़्यादा है, या फिर किसी भी अगर सिटी में भी आप देखोगे जहाँ ग्रीनरी ज़्यादा है वहाँ आपको कूल लगेगा एज कंपेयर टू जहाँ ग्रीनरी नहीं है, जहाँ प्लांट्स नहीं है सिटीज़ में, वहाँ आपको वार्म होगा, यानी टेम्परेचर में डिफरेंस होगा। तो प्लांट्स क्या करते हैं? टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। क्यों? कैसे? ट्रांसपिरेशन कंटिन्यूसली होता है प्लांट से, तो क्या होता है? टेम्परेचर डाउन हो जाता है वहाँ उस एरिया का। नेक्स्ट इज वाटर साइकिल मेंटेनेंस। सो वाटर साइकिल क्या होता है? फॉरेस्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द नेचुरल वाटर साइकिल बाय रिलीजिंग वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, देयर बाय कूलिंग द एटमॉस्फेयर। आगे वही पॉइंट। तो क्या होता है कि जब ट्रांसपिरेशन होता रहता है, ट्रांसपिरेशन होने से क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है वो कूल डाउन हो जाता है सराउंडिंग्स में। नेक्स्ट इज वाटर टेबल मेंटेनेंस। वाटर टेबल का मतलब क्या होता है? अंडरग्राउंड वाटर। सो जब बारिश होती है या फ्लड आता है, बहुत सारा पानी होगा और अगर वहाँ प्लांट्स नहीं है तो क्या होगा? पानी टॉप सॉइल को अपने साथ ले जाएगा और वो सारा पानी वेस्ट हो जाएगा और वो क्या होगा? वो सारा जो वाटर है वो गंदे वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा और यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि सीपेज नहीं होगा। सीपेज तभी पॉसिबल है जब प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, क्योंकि वो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं। सो वाटर की स्पीड को स्लो डाउन कर देते हैं। सो जब वाटर की स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी तो सीपेज इंक्रीज होगा। सीपेज इंक्रीज होगा तो ग्राउंड वाटर का लेवल इनहांस होगा, राइट? सो दे कंट्रीब्यूट टू द मेंटेनेंस ऑफ वाटर टेबल बाय स्लोइंग डाउन द फ्लो ऑफ रेन वाटर. This deliberate slowdown enhances the soil's capacity to absorb water, serving as valuable measure in flood prevention. तो इसकी वजह से क्या होता है? ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ता है, सीपेज बढ़ता है क्योंकि वाटर सीप करेगा अंडर द ग्राउंड और क्या होगा? अंडरग्राउंड वाटर लेवल बढ़ेगा। फ्लड भी आते नहीं है, फ्लड से भी प्रिवेंशन होता है और टॉप सॉइल
को भी होल्ड कर कर रखती है रूट्स, तो क्या होता है, सॉइल इरोजन भी नहीं होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज सॉइल इरोजन प्रिवेंशन। सो द रूट्स ऑफ ट्रीज विद इन द फॉरेस्ट प्ले अ वाइटल रोल इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। दे बाइंड द सॉइल एक्टिंग एज प्रोएक्टिव मेजर अगेंस्ट इरोजन कॉज्ड बाय द विंड एंड द वाटर। सो रूट्स क्या करती है, ट्रीज की रूट्स, प्लांट्स की रूट्स सॉइल को होल्ड करके रखती है, फर्मली उसको होल्ड करती है सॉइल को, तो सॉइल इरोजन नहीं होता है। और फैक्टर्स क्या है सॉइल इरोजन के, एयर एंड वाटर। तो टॉप सॉइल क्या होती है, टॉप सॉइल क्या उसको रूट्स होल्ड कर लेती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी को क्या क्या खतरा है, कैसे खतरा है। सो आस्क योर एल्डर्स हाउ बिग योर सिटी वाज व्हेन दे वर चिल्ड्रन, कंपेयर इट विद द सिचुएशन नाउ। What do you find? Has in the city grown considerably? Why has it grown? So पहले cities इतनी बड़ी नहीं होती थी, पहले क्या होता था, प्लांट ज़्यादा होते थे क्योंकि इतनी पॉपुलेशन नहीं होती थी। अब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है एंड बिकॉज ऑफ दिस क्या हो रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है और उस एरिया को किसके लिए, अदर पर्पसेस के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, घर बनाने के लिए यूज किया जा रहा है। अ मेजर पोर्शन ऑफ द लैंड नीडेड फॉर ग्रोथ ऑफ सिटीज कम्स फ्रॉम कटिंग डाउन फॉरेस्ट एंड यूजिंग द लैंड फॉर अदर पर्पसेस। दिस इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। सो क्या रीजंस है डिफॉरेस्टेशन के, फर्स्ट है अर्बनाइजेशन। सो क्लीनिंग लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ होम्स, फैक्ट्रीज, रोड्स एंड डैम्स लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन। सो पेड़ों को काट कर क्या किया जा रहा है, उस लैंड को यूज किया जा रहा है घर बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए, डैम्स बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए। तो क्या हो रहा है, तो ग्रीनरी यानी पेड़ जो है वो कम होते जा रहे हैं। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर। अब इतनी पॉपुलेशन है तो उसको फीड करने के लिए भी तो खाना चाहिए, और खाना क्या होता है, प्लांट्स बनाते हैं, तो प्लांट्स को ग्रो करना ज़रूरी होता है। तो वो क्रॉप्स ग्रो करने के लिए यानी कि एग्रीकल्चर करने के लिए भी ट्रीज को काटा जा रहा है या फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। सो द नीड फॉर मोर लैंड फॉर फार्मिंग ड्रिवन बाय द डिमांड ऑफ increased food production to support a growing population contributes to deforestation. Next is mining activities. तो हम बहुत ज़्यादा खोदते हैं, ज़मीन को डिग करते हैं और ओर्स और मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए भी क्या होता है, ट्रीज को काटना पड़ता है। नेक्स्ट इज वुड हार्वेस्टिंग। सो द एक्सट्रैक्शन ऑफ वुड फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस, फर्नीचर, मैन्युफैक्चरिंग एंड एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल इज अ सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ deforestation. Overgrazing by cattle, sheep, horse, etc. is another cause of deforestation. तो क्या होता है, कुछ जो कैटल्स होती हैं वो क्या करती है, ग्रेज करती हैं, तो प्लांट्स को ग्रेज करते हैं, उसकी वजह से भी क्या होता है, प्लांट्स क्योंकि ग्रो ही नहीं हो पाते हैं और बहुत सारे प्लांट्स क्या होते हैं, एनिमल्स के पैरों के नीचे दबकर भी मर जाते हैं, राइट। सो ओवरग्रेजिंग नॉट ओनली डिस्ट्रॉयज ग्रासलैंड बट ऑल्सो ट्रीज in forest. So the young trees get eaten or killed by trampling. तो या तो जो छोटे छोटे यंग पौधे होते हैं जो अभी उग रहे हैं, थोड़े से बड़े हुए, या तो उनको एनिमल्स खा जाएंगे या फिर वो उनके पैरों के नीचे दबकर मर जाएंगे. So the lower leaves are eaten up and the roots and trunks are injured. Next is sometimes deforestation also occurs due to natural causes such as drought. सूखा पड़ गया तो भी क्या होगा, प्लांट सारे सूख जाएंगे, मर जाएंगे क्योंकि पानी नहीं मिल रहा. इसके अलावा फॉरेस्ट फायर, जंगल में कभी कभी आग लग जाती है और क्या होती है, सारी लीव्स ड्राई होती है तो बहुत तेजी से फैलती है, बहुत सारे पेड़ एक बार में जलकर खत्म हो जाते हैं. सुनामीज, डिजीजेस, प्लांट्स में भी डिजीजेस आ जाती है, सो डिजीजेस की वजह से भी प्लांट्स और ट्रीज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. एंड अटैक बाय इंसेक्ट्स एंड पेस्ट. सो ये सब रीजंस हैं डिफॉरेस्टेशन के. क्या क्या थे,
ड्राउट है, फॉरेस्ट फायर है, सुनामी है, डिजीजेस है और इंसेक्ट्स एंड पेस्ट, ये सब नेचुरल वेज हैं और हमारे जो मैन मेड हैं, क्योंकि हम खुद जंगलों को काट रहे हैं ताकि हम एग्रीकल्चर कर पाएँ, ताकि हम रोड्स बना पाएँ, डैम्स बना पाएँ, सिटीज़ बना पाएँ। इसकी वजह से भी हम क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। नाउ वाइल्ड लाइफ ट्रेड। सो अब वाइल्ड लाइफ ट्रेड का मतलब जो एनिमल्स है, वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनको मारा जाता है और उनको बेचा जाता है टू अर्न profit, right? So this is called wildlife trade. So trade in exotic birds such as parrot and part of animals is a threat to biodiversity. Tigers are killed for their skin, bones and claws, elephants for their tusks, bears for their fur, rhinoceros for their horns. These parts fetch high prices. तो इनलीगल पोचिंग की जाती है, एनिमल्स की किल किया जाता है और उनके पार्ट्स को क्या किया जाता है, मार्केट में सेल किया जाता है और प्रॉफिट अर्न किया जाता है। नेक्स्ट इज पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज. So human activities have led to the pollution of air, water and land, posing a threat to organisms residing in water bodies, soil and the air, right? So water bodies में भी बहुत सारे organisms रहते हैं, इसके अलावा air में, soil में तो पोल्यूशन हो रहा है तो उनके लिए भी तो खतरा है। अगर सॉइल पोल्यूट हो रही है, एयर पोल्यूट हो रही है, वाटर पोल्यूट हो रहा है, सो ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो अंडर threat, right? So the increased emission of carbon dioxide contributes to the global warming. We all know that carbon dioxide is a greenhouse gas और ग्रीन हाउस गैस क्या करती है, एटमॉस्फेयर में होती है और ये हीट को ट्रैप करती है और उसको स्केप नहीं होने देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर अर्थ का राइज होता है विद पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस सच एज मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस. और अब क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी तो जो पोलर आइस है, पोलर रीजन में जो आइस है वो क्या होगी, वो मेल्ट होगी और मेल्ट होगी तो क्या होगा, सी वाटर का लेवल बढ़ेगा. तो बहुत अब सी वाटर का लेवल अगर बढ़ता जाएगा तो बहुत सारे एरियाज जो नीचे हैं वो पानी के अंदर डूबते चले जाएंगे, राइट? सो कैप्स एंड subsequent rises in sea level. So this anticipated rise in sea level poses a significant risk to the coastal ecosystem, causing the potential डैमेज, राइट? सो कोस्टल एरियाज जो लो लाइन एरियाज होते हैं वो क्या होते हैं, वो वाटर में मर्ज होते चले जाते हैं और इकोसिस्टम को भी खतरा है इसकी वजह से. नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज. समटाइम्स न्यू स्पीशीज इंट्रोड्यूस्ड इन एन इकोसिस्टम बाय ह्यूमन डिस्टर्ब the balance of ecosystem. For example, it may disturb existing food chain. This may result in the death of certain species. So कभी कभी क्या होता है, कुछ न्यू स्पीशीज ऑरिजिनेट हो रही होती है, लेकिन हमारे इंटरवीन करने से इन्वायरमेंट में या हमारी कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से वो स्पीशीज ग्रो नहीं कर पाती है और वो डैमेज हो जाती है. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन के क्या नुकसान है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं? फर्स्ट इज सॉइल इरोजन. सो डिफॉरेस्टेशन कॉन्ट्रीब्यूट टू इंक्रीज्ड सॉइल इरोजन. अगर पेड़ नहीं होंगे तो सॉइल को कौन होल्ड करेगा, और अगर सॉइल होल्ड नहीं होगी तो वो वाटर या फिर एयर से, विंड से क्या करेगी, या तो ब्लोन अवे हो जाएगी या पानी के साथ बह जाएगी. The removal of trees exposes the topsoil, which is more prone to erosion. Over time, this can lead to the transformation of land into less fertile. So topsoil जो कि fertile होती है, अगर वो ही चली जाएगी या वो ही erode हो जाएगी तो क्या होगा, प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे और सॉइल क्या हो जाएगी, इनफर्टाइल हो जाएगी. और इनफर्टाइल सॉइल जो होगी धीरे 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 वो एरिया कैसा, डेजर्टिफिकेशन की तरफ चला जाएगा, वहाँ पर डेजर्ट बन जाएगा, राइट? सो विच इज़ मोर प्रॉन टू इरोजन. ओवर टाइम दिस कैन लीड टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लैंड इनटू लेस फर्टाइल,
hard and rocky surface, potentially resulting in desertification. So धीरे धीरे वो एरिया डेजर्ट बनता चला जाएगा. Now elevated carbon dioxide levels means कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा. सो डिफॉरेस्टेशन कंट्रीब्यूट्स टू एन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर. एलिवेटेड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स कैन लीड टू द ग्लोबल वार्मिंग. हमने अभी डिस्कस किया कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है, और अगर वो एटमॉस्फेयर में है तो वो एनर्जी को ट्रैप करती है एंड इट डज नॉट लेट इट गो. तो एनर्जी ट्रैप होती है विच लीड्स द ग्लोबल वार्मिंग. और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है. दिस राइज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कैन डिसरप्ट द वाटर साइकिल एंड मे रिजल्ट इन रिड्यूस्ड रेनफॉल. बारिश भी कम होती है एंड लीडिंग टू द ड्राउट्स. और बारिश कम होगी तो क्या होगा, सूखा होगा, राइट. सो लीडिंग टू द ड्राउट्स. नेक्स्ट इज ग्राउंड वाटर रिडक्शन. अब बारिश नहीं होगी, पेड़ नहीं है, तो पानी क्या होगा, पानी सीप नहीं करेगा ग्राउंड में, तो वाटर लेवल बढ़ेगा नहीं, और क्या होगा, फ्लड आएगा. पानी तेजी से वो सारा पानी वेस्ट हो जाएगा और वो गंदे पानी के साथ मिल जाएगा, सीवेज के साथ. सो द डिक्रीज्ड वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल रिजल्टिंग फ्रॉम द डिफॉरेस्टेशन कंट्रीब्यूट्स टू द रिडक्शन इन ग्राउंड वाटर लेवल. और इसकी वजह से जब सीपेज नहीं होगी तो क्या होगा, ग्राउंड वाटर का लेवल धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि हम ग्राउंड वाटर तो एक्सट्रैक्ट कर ही रहे हैं, ट्यूबवेल्स लगा रहे हैं, समरसिबल्स लगा रहे हैं, राइट. तो हम ग्राउंड वाटर को तो लगातार यूज कर रहे हैं. सो दिस डिमिनिश्ड एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर कैन लीड टू इंक्रीज्ड फ्लडिंग इवेंट्स. और क्या होगा, जब पानी ग्राउंड के अंदर नहीं जाएगा तो फ्लड आएगा, राइट. तो फ्लड आने की वजह से और ज़्यादा नुकसान होगा. नेक्स्ट है शॉर्टेज ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट. So deforestation causes a shortage of products derived from the forest, affecting various industries that rely on these resources. So बहुत सारी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं जो रॉ मटेरियल कहाँ से लेती हैं, फॉरेस्ट से लेती है. तो अब अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो उन फैक्ट्रीज को रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, और रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो फाइनल प्रोडक्ट कैसे बन पाएगा, राइट. तो रॉ मटेरियल भी क्या, उसकी भी शॉर्टेज हो जाएगी. सो दिस इंक्लूड्स टिम्बर फॉर कंस्ट्रक्शन, वुड फॉर फर्नीचर एंड अदर फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स. कुछ जैसे फैक्ट्रीज हैं फॉर एग्जाम्पल जो मेडिसिन बनाती हैं, कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हैं. अब अगर फॉरेस्ट कट गए, वो प्लांट्स कट गए, तो उनको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, राइट. सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आजकल हमें मार्केट में मिलती हैं, लाइक स्पाइसेस मिलते हैं, जो पैक्ड स्पाइसेस मिलते हैं. तो अब वो फैक्ट्रीज लगी हुई है जो स्पाइसेस को स्पाइसेस को कलेक्ट करती है, फिर उनको पीसती हैं, उनको क्लीन करती हैं और फिर पैक करती हैं. तो वो सब चीज़ें क्या होंगी, हमारी इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं हो पाएगा. नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ इन डेंजर. अब जो एनिमल्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉरेस्ट में रहते हैं, उनके लिए भी तो खतरा है अगर फॉरेस्ट नहीं है तो. सो इन रिसेंट ईयर्स द पॉपुलेशन ऑफ मेनी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज हैव बीन डिक्रीजिंग मेनली ड्यू टू द चेंजेस इन एनवायरनमेंट ब्रॉट अबाउट द ह्यूमंस. हमारी वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं, जो फॉरेस्ट कटते जा रहे हैं, उसकी वजह से बहुत सारी स्पीशीज खतरे में आ गई हैं वाइल्ड लाइफ की. वी हैव क्लियर्ड फॉरेस्ट, कन्वर्टेड ग्रासलैंड्स इनटू फार्मलैंड्स, फ्लडेड लार्ज एरियाज बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स. अच्छा, अगर हम डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं, सो डैम कंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत बड़ा एरिया एक्वायर करना पड़ता है, और उस एरिया में जितने भी ट्रीज हैं, फॉरेस्ट है, उन सबको काटना पड़ता है, राइट. और तब फिर वहाँ पर वाटर को रोका जाता है और डैम बनाए जाते हैं, राइट. सो ड्रेन्ड स्वैम्स एंड पोल्यूटेड द एयर एंड वाटर. सो ड्रेन्ड स्वैम्स का मतलब क्या होता है, ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पानी अवेलेबल है. अब अगर हमने उसको यूज़ करना है तो हमने क्या करें, उन स्वैम्स को सुखा दिया, और क्या किया, वाटर को भी पोल्यूट कर रहे हैं, साथ साथ एयर भी पोल्यूट हो रही है. सो दिस हैज़ डिस्ट्रॉयड द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड हैज़ डिस्टर्ब द डेलिकेट बैलेंस ऑफ नेचर. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, फॉरेस्ट खत्म होते जा रहे हैं और वाइल्ड लाइफ को
खतरा है। नेक्स्ट इज इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट एनिमल्स। इंडेंजर्ड जो खतरे में है, एक्सटिंक्ट एनिमल्स होते हैं जो अब खत्म हो चुके हैं। सो एनिमल्स दैट आर अनेबल टू अडेप्ट टू एनवायरमेंटल चेंजेस फेस द रिस्क ऑफ डेथ and certain species may reach a critically low population। धीरे धीरे करके उनकी पॉपुलेशन कम होती जाएगी और फाइनली वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे एनिमल्स। सो क्लासिफाइंग देम एज इंडेंजर्ड। सो जिनकी स्पीशीज जो स्पीशीज नंबर्स में कम होती जा रही है, जिनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, उनको हम किस में रखते हैं? endangered species में। So without protective measures these species may ultimately become extinct। और अगर हम endangered species को protect नहीं करेंगे तो एक टाइम पर वो क्या हो जाएंगी? extinct हो जाएंगी। extinct का मतलब खत्म हो जाएंगी completely earth से। So disappearing from the earth, historical examples of extinct species include the dodo and dinosaurs, so both of which have vanished from the planet over the years, right? कुछ सालों में ये डोडो एंड डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए हैं, अब ये बिल्कुल नहीं है अर्थ पे। द माउंटेन स्क्वेल ऑफ द वेस्टर्न हिमालयाज, द पिंक हुडेड डक, द सिक्किम स्टैग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स दैट हैव रिसेंटली बिकम एक्सटिंक्ट। तो ये अभी एक्सटिंक्ट, अभी का मतलब कुछ सालों में एक्सटिंक्ट हो गई है। माउंटेन क्वेल ऑफ द वेस्टर्न हिमालयाज, द पिंक हेड डक, दीज आर ऑल एक्सटिंक्ट। कौन से? क्वेल, पिंक हेड डक एंड सिक्किम स्टैग आर एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स दैट हैव रिसेंटली बिकम एक्सटिंक्ट। अभी कुछ टाइम में, कुछ सालों में ही ये एक्सटिंक्ट हुए। Additionally, several species are currently classified as endangered, including the bison, beaver, pronghorn, antelope, tiger, Asiatic lion, and leopard. So these species are endangered, यानी कि अगर हम इन पे कोई proactive measure नहीं लगते हैं तो धीरे धीरे ये किस में मूव हो जाएंगी? एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। अभी endangered है और फिर एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। Preserving and implementing conservation effort for these endangered species is crucial to prevent further population decline and potential extinction, right? So ऐसा ना हो कि इनके लिए हमें कुछ प्रोएक्टिव मेजर्स लेने चाहिए, प्रोएक्टिव मेजर्स, ताकि इनकी पॉपुलेशन बढ़ सके। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ये इंडेंजर की कैटेगरी से बाहर आ जाएंगे, राइट? स्मॉलर एनिमल्स इंक्लूडिंग स्नेक्स आर अंडर द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट टू दिस डेंजर। द इनडिस्क्रिमिनेट killing of snakes by humans poses a significant risk to ecosystem। अब देखिए स्नेक भी इंडेंजर्ड हो गया है। सो स्नेक इंडेंजर्ड होने की वजह से धीरे धीरे अगर हमने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया तो क्या होगा? वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो हमारी एक्टिविटीज की वजह से क्या होगा? इकोसिस्टम से स्नेक ही गायब हो जाएंगे। तो क्या होगा? इकोसिस्टम इम्बैलेंस होगा या नहीं होगा? लाइक स्नेक फ्रॉग्स को खाते हैं, ठीक है? सो फ्रॉग्स की क्वांटिटी बहुत बढ़ने लगेगी, ठीक है, अगर स्नेक्स बिल्कुल खत्म हो गए। सो स्नेक्स किसी भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पीशीज का खत्म होना, एक्सटिंक्ट होना क्या करता है? इकोसिस्टम को इम्बैलेंस करता है। For instance, if all snakes were eliminated from a region, the rat population would surge because there would be no predators to control their numbers। और snake क्या करते हैं? उसको भी खाते हैं, rats को भी खाते हैं, right? So rats का भी नंबर बढ़ने लगेगा। snake खत्म हुए तो rats का नंबर बढ़ने लगेगा। The increased rat population in turn could lead to higher consumption of grain। अब उसका इफेक्ट क्या होगा? अगर बहुत ज़्यादा रैट्स बढ़ गए तो रैट्स क्या खाते हैं? ग्रेन खाते हैं, तो ग्रेन को खाने लगेंगे, ग्रेन क्या होगा? कम होने लगेगा। सो पोटेंशियली कॉजिंग अ फूड शॉर्टेज। Therefore, eliminating snakes disrupt the food chain and web in which they play a role, ultimately causing
harm to us, right? So एक यानी फूड चेन में और बहुत सारी फूड चेन मिलकर क्या बनाती है, फूड वेब बनाती है, राइट? सो अगर स्नेक खत्म हो गए तो रैट्स बढ़ जाएंगे, रैट्स बढ़ेंगे तो वो वैसे ही सारा ग्रेन खा जाएंगे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, तो क्या होगा, इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा और क्या होगा, नुकसान हमें ही होगा। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो हमें क्या करना चाहिए, वाइल्ड लाइफ को फॉरेस्ट करना चाहिए। और वाइल्ड लाइफ कैसे प्रोटेक्ट होगी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट होगी जब हम फॉरेस्ट को कंजर्व करेंगे, राइट? सो दीज आर इंटरलिंक्ड। You studied about method of conserve forest in class 7. In brief, some of these methods of the conservation are follows. Plant harvesting. Plant harvesting क्या थी, हमने क्लास 7 में पढ़ा था प्लांट हार्वेस्टिंग। इसमें सारी प्लांट्स को नहीं काटा जाता है, कुछ प्लांट्स को काटा जाता है, कुछ को छोड़ दिया जाता है, सिलेक्टेड प्लांट्स को काटा जाता है जो जैसे खराब होने वाले होते हैं या लग रहा है कि अब ये बहुत ज़्यादा इनको काट देना चाहिए या ज़्यादा स्पेस ले रही है, लेकिन सारे उस पर्टिकुलर एरिया के सारे ट्रीज़ को, सारे प्लांट्स को नहीं काटा जाता, राइट? और उससे क्या होता है, ताकि सीड फॉर्मेशन हो, सीड फॉर्मेशन होगा तो उस लैंड को अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो अपने आप लैंड क्या होती है, रिप्लेनिश हो जाती है, न्यूट्रिएंट रिप्लेनिश हो जाते हैं, सीड्स डिस्पर्सल होगा तो फिर से न्यू प्लांट्स उग जाएंगे, right? So cutting only some of trees in an area, the uncut trees prevent erosion and produce seed so that new trees can grow. So seed formation होगा और soil erosion भी रुक जाएगा। और अगर हमें जितनी ज़रूरत है, हमने कुछ selected plants को काटा, सारे plants को नहीं काटा। So this is called plant harvesting. Next is afforestation. जितना हमने deforestation किया है, जितने हमने trees काटे हैं, उनके बदले हम दोबारा से क्या करें, ट्रीज प्लांट करें या प्लांट्स को प्लांट करें, विच मीन्स रिन्यूइंग अ फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग सीडलिंग्स। सीडलिंग्स क्या होता है, सीड जो जर्मिनेट हो जाते हैं, जो सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं उसमें रूट और शूट आ जाती है, छोटा प्लांट विच इज कॉल्ड सीडलिंग, राइट? सो सीडलिंग और स्मॉल ट्रीज ऑफ सेम स्पीशीज आर फाउंड इन द forest. At least as many as trees we have cut should be planted. जितने हमने पेड़ काट दिए हैं उतने पेड़ तो कम से कम लगाएं, ऑल्दो हमें ज़्यादा लगाने चाहिए क्योंकि एयर पोल्यूशन कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ये सब फैक्टर्स कब रिड्यूस होंगे, ये इनका इम्पैक्ट कम होगा जब हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाएं। Takes place naturally. Also, if we let the area remain undisturbed, the trees grows back and the forest gets re-established. अगर हम उस एरिया में कोई एक्टिविटी ना करें, उस एरिया को ऐसे ही छोड़ दें जहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हो चुका होता है, तो नेचर क्या करती है, नेचर अपने आप को दोबारा से रिप्लेनिश कर लेती है, राइट? दोबारा से वहाँ प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे, ट्रीज ग्रो हो जाएंगे और धीरे 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 करके अपने आप ही फॉरेस्ट बन जाएंगे, ठीक है? सो इट डज नॉट मीन दैट वी आर कल्टिवेटिंग द प्लांट्स इफ वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग एंड वी आर लीविंग द लैंड लाइक दिस, सो दिस वुड बी अगेन, प्लांट्स वुड बी अगेन कल्टिवेटिंग। Next is protection from forest fire by spraying fire extinguishing solution from the aircraft. अगर जंगल में आग लग जाती है तो उसको कैसे बुझाएं, आग बहुत भयंकर होती है जंगल की और वो कुछ ही few hours बहुत तेज़ी से फैलती है और सारे के सारे पेड़ जल जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, एयरक्राफ्ट से कुछ जो फायर एक्सटिंग्विशिंग सॉल्यूशंस होते हैं उनको स्प्रे करना चाहिए बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द विंड बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग ब्लोअर्स। ब्लोअर्स क्या करते हैं, हवा फेंकते हैं। तो हवा फेंकने से क्या होता है, एक ही तरफ में हवा क्या हो रही है, हवा विंड जा रही है तो आग उसी एरिया में फैलती जाएगी। तो बड़े बड़े ब्लोअर्स इंस्टॉल करके क्या करते हैं, फोर्सफुली विंड की डायरेक्शन को चेंज किया जाता है, सो दैट जंगल की तरफ से उसकी डायरेक्शन हटा के दूसरी साइड में की जाती है, सो दैट जो फायर है वो ज़्यादा स्प्रेड ना हो। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पेस्ट बाय यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स एंड फंगिसाइड्स एंड रिमूविंग इन्फेक्टेड ट्रीज। तो क्या करते हैं, प्लांट्स भी खराब होते हैं, प्लांट्स में भी डिजीजेस आती हैं,
तो उसके लिए फंगीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स यूज किया जाता है, सो दैट कि प्लांट्स हेल्दी रह सके. प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवरग्रेजिंग टू प्रोटेक्ट ग्रोइंग प्लांट्स बाय प्रोवाइडिंग पेस्चर विद कैन बी यूज्ड बाय रोटेशन, राइट. जो हम ऐसा नहीं कि उसमें ओवरग्रेजिंग प्लांट एनिमल्स जो ग्रेज करते हैं, ओवरग्रेजिंग की वजह से क्या होती है, जो ग्रासलैंड्स होते हैं वो फिर से क्या करते हैं, वहाँ पे कोई कुछ ग्रोथ नहीं होती है. तो रोटेशन ऑफ क्रॉप्स होनी चाहिए और एनिमल्स को ओवरग्रेजिंग के लिए नहीं भेजना चाहिए उन एरियाज पर. वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज क्लोजली रिलेटेड टू द फॉरेस्ट कंजर्वेशन, राइट. तो क्या करना है, वाइल्ड लाइफ किस पर डिपेंडेंट है, फॉरेस्ट लाइफ पर. तो इफ वी आर कंजर्विंग फॉरेस्ट, इनडायरेक्टली वी आर कंजर्विंग द wildlife. These two things are interdependent. When a forest is destroyed, a large number of animals become extinct or endangered. So to conserve the habitat of endangered animals, it is necessary to protect the forest, right. So first is preservation of habitat. सबसे पहले घर को preserve करना पड़ेगा, right. और घर क्या है, forest है, because animals are dependent on the forest for their food as well as for shelter. The conservation of wildlife is facilitated by preventing their natural habitat. Preventing deforestation stands out a crucial approach to habitat preservation. Afforestation, the process of planting trees, contribute to providing shelter and sustenance for wildlife. तो जितना हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे उतना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट होगी. नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ हंटिंग. हंटिंग बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए. पोचिंग इज इनलीगल हंटिंग, ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए. Government regulation governing hunting activities and their rigorous enforcement play a pivotal role in wildlife conservation. Complete prohibition of hunting endangered species is mandated. The illicit hunting of animals is termed as poaching. जो endangered species है वो तो बिल्कुल ही illegal है, उनकी हंटिंग नहीं होनी चाहिए. लाइक बाइसन है और टाइगर्स हैं, इनकी हंटिंग, इलीगल हंटिंग अगर इनकी होती है, सो दिस इज कॉल्ड पोचिंग. और गवर्नमेंट ने रूल्स बनाई हैं, कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं एनिमल हंटिंग के ऊपर. इन इंडिया दो द हंटिंग ऑफ टाइगर इज बैंड, ये बिल्कुल बैन है. दे आर बीइंग रेगुलरली किल्ड एज देयर स्किन एंड बोन्स फैच लार्ज अमाउंट ऑफ मनी. तो हम लोग अपने बेनिफिट के लिए क्या कर रहे हैं, टाइगर को किल कर रहे हैं, उसको हंट कर रहे हैं. इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच लॉ इज देयरफॉर फॉर एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंस. जो लॉ गवर्नमेंट ने बनाए हैं उन लॉज को इम्प्लीमेंट करना भी उतना ही ज़रूरी है. ऐसा नहीं लॉज बनाना इज गुड, इट इज़ ओके, बट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज laws are equally important. Next is creating protected areas like biosphere reserves, wildlife sanctuaries and national park. Right, so national park government ने बनाए हैं, कुछ wildlife sanctuaries बनाई हैं, कुछ biosphere reserves बना है जहाँ पर wildlife को protect किया जाता है. The effectively implement of the method of conserving forest and wildlife, the government has get aside permanent protected areas for conservation of biodiversity in that area, right. These are known as biosphere reserves. So बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ी लैंड को प्रोटेक्ट किया जाता है और परमानेंट प्रोटेक्ट किया जाता है. इनफैक्ट पूरा इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाता है. सो दीज आर कॉल्ड बायोस्फीयर रिजर्व्स. बायोस्फीयर रिजर्व, अब एक बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क भी हो सकते हैं. ठीक है, एक बायोस्फीयर रिजर्व में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकती है और वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क्स भी हो सकते हैं. इनको मिलाकर एक बायोस्फीयर रिजर्व भी बन सकता है. अ बायोस्फीयर रिजर्व इज अ लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया सेट असाइड फॉर conserving biodiversity as well as the traditional lifestyle of the tribal living in that area. So biosphere में जो वहाँ के local tribes होती हैं
उनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है, राइट। सो बायोस्फीयर को प्रॉपर इकोसिस्टम यानी कि लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स वहाँ पर जो है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। वो एक सॉर्ट ऑफ फॉरेस्ट बनाया जाता है जहाँ पर ट्राइब्स को भी, लोकल ट्राइब्स को भी प्रोटेक्ट किया जाता है और वहाँ के एनिमल्स को और बाकी ऑर्गेनिजम्स को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। The Indian government launched Project Tiger in 1973 to protect the tiger which had become an endangered species. So 1973 में इंडिया गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था। It started with 9 tiger reserves. By 2023 this number had risen to 54. पहले जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था तो कितने रिजर्व्स थे टाइगर रिजर्व्स? 9, लेकिन 2023 तक 54 टाइगर रिजर्व्स बन चुके हैं। द प्रोजेक्ट एम्स टू मेंटेन अ सूटेबल टाइगर पॉपुलेशन इन द नेचुरल एनवायरनमेंट, क्योंकि ये इंडेंजर्ड स्पीशीज है। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉरेस्ट एंड पेपर। सो पेपर किससे बनता है? वुड पल्प से बनता है। सो पेपर प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ वुड पल्प एंड अप्रॉक्सीमेटली 17 फुली ग्रोन ट्रीज। इनसे कितना पेपर बनता है? 1 टन ऑफ पेपर, यानी 17 अच्छे बड़े बड़े पेड़ अगर हम काटते हैं तो उससे 1 टन पेपर बनेगा। जस्ट पेपर को हम यूज़ करते हैं, राइट, पेपर बैग्स बनते हैं, हम राइटिंग के लिए यूज़ करते हैं, बुक्स प्रिंट होती हैं, ठीक है, और हम जितना राइटिंग वर्क है वो उन पेपर पे यूज़ करते हैं। जो 1 टन पेपर बनने के लिए 17 fully grown trees have been cut down. So conserving paper is not only a means of preserving trees but also contributes to saving energy and water required in the paper manufacturing process, right? So paper कैसे मैन्युफैक्चर होगा? इसकी इंडस्ट्रीज होती हैं पेपर मैन्युफैक्चर करने की। तो इसमें अगर हम पेपर सेव कर रहे, वी आर नॉट वेस्टिंग द पेपर, वी आर रीयूजिंग इट एंड रिसाइकलिंग इट। तो हम सिर्फ और सिर्फ ट्रीज को सेव नहीं कर रहे, वी आर ऑल्सो सेविंग एनर्जी एंड वाटर, क्योंकि इंडस्ट्रीज को चलने के लिए क्या चाहिए होता है? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, फ्यूल चाहिए होता है, उसको सेव कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो सेविंग द वाटर। Additionally, reducing paper usage leads to decrease in pollution. पॉल्यूशन में कैसे डिक्रीमेंट होगा? क्योंकि पेड़ नहीं कटेंगे। अगर हम पेपर को कम यूज़ करेंगे तो पेड़ कम कटेंगे, पेड़ कम कटेंगे तो पॉल्यूशन कम होगा। As it minimizes the need of harmful chemicals used in paper production, और पेपर प्रोड्यूस करने में, पेपर मैन्युफैक्चर जब होता है तो बहुत सारे केमिकल्स भी यूज़ किए जाते हैं। सो वी आर saving these chemicals as well. Therefore, saving paper has multifaceted environmental benefits. क्या क्या benefits? एक तो trees नहीं कटोगे, energy save होगी, water save होगा, pollution भी save होगा, because फैक्ट्रीज में जब मशीन्स चलती हैं तो पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन भी होता है, और कुछ केमिकल्स जो यूज़ होते हैं पेपर प्रोसेस करने के लिए वो भी हम सेव करेंगे। सो हमें पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज एंडेमिक स्पीशीज। ये कौन सी स्पीशीज होती हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिबिट अ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द ग्लोब। एक तरीके का प्लांट या एक तरीके का एनिमल पर्टिकुलर एक एरिया में ही अगर मिलता है पूरे ग्लोब में, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एलिफेंट है तो एलिफेंट सिर्फ इस पर्टिकुलर एरिया में, सब जगह है, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, राइट, डिफरेंट स्पीशीज़ हैं कि इस एरिया में एलिफेंट की ये स्पीशीज़ मिल रही है, दूसरे एरिया में या दूसरे कॉन्टिनेंट पर डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल है, एलिफेंट्स हैं, और किसी कॉन्टिनेंट पे वो है ही नहीं। सो राइट, सो प्लांट्स एंड एनिमल एग्जिबिट अ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द ग्लोब। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? जो अभी हमने डिस्कस किया कि एक तरीके की स्पीशीज, जो एक स्पीशीज है वो एक जगह ना होकर, मतलब सब जगह नहीं होती, ग्लोबली प्रेजेंट नहीं होती है। सो दिस इज कॉल्ड non-uniform distribution. Some like human dogs and cats are widespread and can be found in various regions. घर में हम एज अ पेट रखते हैं, डॉग्स को रखते हैं, कैट्स को रखते हैं,
सो ज़्यादातर ये डॉग्स एंड कैट्स हमें ईजिली मिल जाते हैं. In contrast, certain species have highly restricted distribution and may exist solely in limited areas such as specific forest, a single island or within a particular river or lake. These narrowly distributed organisms are termed as endemic species because they are unique to and exclusively found in particular region, right? So exclusively found in particular region, अगर कोई स्पीशीज है उसको हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज. एंडेमिक स्पीशीज आर दो स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया and are not naturally found anywhere else. They may be endemic or restricted region, a state or a country. For example, the Indian giant squirrel and flying squirrel are endemic to the पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व एरिया. जो इंडिया में पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है वहाँ पर क्या मिलती हैं, फ्लाइंग स्क्वेरल्स और जाइंट स्क्वेरल्स हैं. ये पर्टिकुलरली हमें पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में मिलती हैं. सो दैट इज व्हाई दीज आर endemic species. Next is Asiatic lion is now believed to reside only in Gir National Park which is in Gujarat. गिर नेशनल पार्क है, ये प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर्स के लिए है, सॉरी लायन के लिए. सो एशियाटिक लायन अब कहाँ मिलते हैं, गिर नेशनल पार्क में, गुजरात में है, राइट. सो दिस इज अगेन एंडेमिक स्पीशीज. सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर chapter which is red data book. What is this? The IUCN. IUCN means International Union for Conservation of Nature and Natural Resources assesses the conservation status of species around the world. तो IUCN क्या करती है, ग्लोबली वो प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज के ऊपर स्टडी करती रहती है एंड दे आर मेंटेनिंग अ डेटा. दिस इज डन टू हाईलाइट दोज थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन. तो इसमें क्या क्या होता है, बुक में कैटेगरीज बनी हुई हैं. क्या क्या कैटेगरीज हैं, थ्रेटेंड विद एक्सटेंशन यानी खतरे में है और ख़त्म होने वाले हैं. थ्रेटेंड विद एक्सटेंशन विद द एम ऑफ प्रमोटिंग देयर कंजर्वेशन. तो उस रेड डेटा बुक में उसको मेंटेन किया जाता है. ये एरिया वाइज बनती है, कंट्री वाइज, एरिया वाइज. सो पर्टिकुलर एरिया में किस तरीके का फ्लोरा एंड फौना है और कौन सी स्पीशीज इंडेंजर्ड हैं. सो दैट ये डेटा शेयर किया जाता है उस पर्टिकुलर एरिया के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, सो दैट दे कैन टेक प्रोएक्टिव मेजर्स टू प्रोटेक्ट दीज स्पीशीज. द IUCN मेंटेन्स अ रेड लिस्ट. रेड डेटा बुक एक बुक का नाम है, उसके अंदर रेड लिस्ट होती है विच इज अ कंपाइलेशन ऑफ इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ स्पीशीज, जिसके अंदर वो स्पीशीज को कंपाइल किया जाता है यानी उन प्लांट्स को और एनिमल्स को कंपाइल किया जाता है यानी उनके नाम लिखे जाते हैं जो अब थ्रेटेंड की कैटेगरी में है. इट ऑल्सो मेंटेन्स अ रेड डेटा बुक विच प्रोवाइड्स डेटा on population status of the species including in red list. तो red data book है और एक red list है. red list तो वो है जो अब इस समय जिन पर खतरा है, उसमें red list में वो species आ गई animals और plants की. बट red data book में जो red list में animals और plants हैं उनको भी include किया जाता है और वो area wise, country wise बनती है. so that कि उन कौन सी स्पीशीज एंडेंजर्ड है, कौन सी इंडेंजर होने वाली हैं, कौन सी एक्सटिंक्ट हो गई हैं या कौन सी वल्नरेबल है. सो बोथ द रेड लिस्ट एंड रेड डेटा बुक शोज द रिस्क ऑफ एक्सटेंशन ऑफ वेरियस species. The red data book species are classified into different categories depending on the risk of extinction. For example, extinct, critically endangered. एक्सटेंट तो जो बिल्कुल एक्सटेंट हो चुके हैं, जो अब है ही नहीं, उसमें कौन कौन सी स्पीशीज हैं जो एक्सटेंट हो चुकी हैं. आफ्टर दैट क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जो एनिमल्स डेंजर में हैं, जो स्पीशीज इंडेंजर्ड कैटेगरी भी में हैं बट उसमें भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं,
वो एक अलग कैटेगरी होती है। देन इंडेंजर्ड की कैटेगरी होती है एंड वल्नरेबल मीन्स ये अभी कोई मतलब ये अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, यानी इनकी पॉपुलेशन अच्छी है, राइट। सो क्रिटिकली इंडेंजर्ड और इंडेंजर्ड पर गवर्नमेंट को प्रोएक्टिव मेजर्स लेने होते हैं सो दैट ये कहीं एक्सटिंक्ट ना हो जाए। द रेड लिस्ट एंड रेड डेटा बुक आर रिवाइज्ड पीरियोडिकली, और टाइम टू टाइम इस पर क्योंकि कंटिन्यूस स्टडी होती रहती है सो टाइम टू टाइम पीरियोडिकली इसमें अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, चेंजेस किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज, more than 44,000 species are threatened with extinction globally, right? 44,000 species critically endangered हैं globally, जो बिल्कुल अगर उनके ऊपर कोई प्रोएक्टिव मेजर नहीं लिए गए तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी ग्लोब से। 1 in 4 mammals, 1 in 8 birds, 1 in 3 amphibians and almost half of the freshwater turtles are threatened, right? So red data book और रेड लिस्ट उन स्पीशीज की लिस्ट है जो endangered है, critically endangered है, और रेड लिस्ट में वो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं जिन पर काम करने की या जिन पर प्रोएक्टिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है। Let's memorize what we have learned. First is flora. Flora is species of all plants found in particular area, and fauna is all the species of animals found in particular area. Recall, an ecosystem encompasses all plants, animals, microorganisms and non-living components like climate, soil, river and delta in a particular area, right? So ecosystem includes living and non-living things. Biodiversity represents the variety of plants, animals and microorganisms typically present in a given area. Next is flora refers to the plant species found in specific region, while fauna pertains to the animal species. Next is deforestation is a process of cleaning forest by cutting down trees and repurposing the land for ऑल्टरनेटिव यूजर्स। पेड़ हमने काट दिए और अब उस लैंड को हम अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन में लीड टू डेजर्टिफिकेशन, और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? ग्लोबल वार्मिंग है, ड्राउट है, रिडक्शन इन ग्राउंड वाटर लेवल्स हैं एंड शॉर्टेज ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट इज endangered animals are species that face the risk of declining and facing potential extinction due to their inability to adapt to environmental changes, resulting in significant reduction of their population. So endangered species वो species हैं plants और animals की जो अपने आप को surroundings के according, environment के according adapt नहीं कर पाई है और अब उनकी population बहुत कम हो गई है। Forest conservation can be achieved through plant tree harvesting, afforestation, protection from fire, insect and pest, as well as guarding against overgrazing. So इन measures से हम forest को conserve कर सकते हैं। Wildlife conservation involves habitat preservation, establishing wildlife sanctuaries and enforcing hunting regulation. कुछ हार्ड रूल्स बनाए जाएं, उनको इम्प्लीमेंट किया जाए और क्या करें? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज स्टेब्लिश की जाएं, नेशनल पार्क स्टेब्लिश किए जाएं, बायोस्फीयर स्टेब्लिश किए जाएं ताकि हैबिटेट प्रिजर्व हो सके। किसका? वाइल्ड लाइफ का। A biosphere reserve is an extensive protective area designated for the conservation of wildlife, plant and animal resources and the traditional way of life of the indigenous tribes residing in this region. So biosphere में क्या होता है? Animals और animals को protect किया जाता है, forest को, trees को, क्या साथ साथ tribes को भी protect किया जाता है। National parks and wildlife sanctuaries are designated to protect forests, to safeguard and create suitable
living condition for wild animals. Endemic species refers to plant and animals exclusively found in specific area, not naturally occurring anywhere else. एक particular area में कोई special type of species है animal की या plant की, so these are known as endemic species. The red list and the red data book highlighted the species that are at risk of extinction, right? So let's proceed for the question answers. So children, first question we have darken the correct option in OMR sheet. First one, the plants found in particular region, these are known as flora, right? So we will dark this circle. B, I am darking it. So rest you all need to do. Next question, which of the following is not a conservation category of wildlife which is extinct? Next is, which of these is not caused by deforestation? So storm is not caused by the deforestation. Dodo is an extinct species. WWF works in the field of forest conservation. WWF is for the forest conservation. Next question children, fill in the blank. First fill up we have, if all trees in forest are cut, it will lead to erosion of soil. Next fill up, grazing by cattle should be controlled for forest conservation. Third one, wildlife conservation and forest conservation are closely related. Fourth one, saving paper means saving trees. Next one is, next fill up children, species which are confined to a restricted area on the earth are known as endemic species. Last fill up, the red list is a list of endangered and threatened animals. Next question, state T for the true and F for the false one. First statement, there can be a wildlife sanctuary within a biosphere reserve. Yes, this is true. Plants of a particular area are collectively termed as fauna. This is false because it is fauna. Third one, deforestation leads to an increase in the water holding capacity of the soil, which is false. It decreases the water holding capacity. Fourth one, bison is an endemic fauna of Panchmari Biosphere Reserve. This is false. And the fifth one, soil erosion can lead to desertification. This is true. Next is very short answer type question. First question, what is biodiversity? Answer is, biodiversity represents the variety of plants, animals and microorganisms typically present in a given area. Next one, what do you mean by flora and fauna? So flora, species of all plants found in a particular area, whereas fauna, species of all animals found in an particular area. Question number 3, what is deforestation? And the answer is, deforestation is a process of cleaning forest by cutting down trees, not repurposing the land for alternate use. Question number 4, why do some animals become endangered? Answer is, some animals become endangered due to the habitat loss, pollution, overhunting and climate change. Question number 5, what is biosphere reserve? Answer is, a biosphere is a reserve, is an extensive protected area designated for the conservation of wildlife, plant and animal resource and the traditional way of life of the indigenous tribe residing in that region. Question number 6 children, what are endemic species? Answer is, endemic species refers to plants and animals exclusively found in a specific area, not naturally occurring anywhere else. Question number 7, why did IUCN prepare the red data book? Answer is, IUCN prepared the red data book to assess the
conservation status of the species and identify those at risk of extinction. Question number 8. Into what categories are the species listed in the red list and red data book classified? Answer is the species listed in the red list and the red data book are classified in extinct, critically endangered, endangered and vulnerable. Right children? Now proceeding towards the next question, which is short answer type question. Children, first short answer type question is list 4 ways in which forests are useful to us. So forests are useful to us for providing oxygen, regulating the climate, supporting biodiversity and supply resources like timber, food and medicinal plants. Next question, list 3 main causes of deforestation. So 3 main causes of deforestation are: first, logging for timber and paper products. Second is infrastructure development like road, dam construction. Third, agriculture expansion, cleaning land for crops or for livestock. Question number 3, deforestation can lead to desertification. How? So deforestation can lead to desertification because trees help maintain soil moisture and prevent erosion. Without trees, soil becomes more vulnerable to erosion by wind and water, leading to desertification. Question number 4, what effect can deforestation have on underground water? Give reason. So the answer is decreasing water absorption into soil. Second, increasing soil erosion, reducing water infiltration. Third one, disrupting the hydrological cycle, which is water cycle. Question number 5, what do you mean by planned harvesting of forest? How does it help in their conservation? Answer is planned harvesting of forest means cutting only some of the trees in an area. The uncut trees prevent erosion and produce seeds so that new seeds can grow into a plant. Question number 6, in what ways are wildlife conservation and forest conservation related? Answer is wildlife conservation and forest conservation are related because forest provides habitat, food and essential services for the wildlife, while the wildlife populations rely on forest for survival and movement. Question number 7, what is the difference between a wildlife sanctuary and a biosphere reserve? Answer is a wildlife sanctuary protects specific wildlife habitat and species, while a biosphere reserve balances biodiversity's conservation with sustainable human development across larger areas. Next is long answer type question. So this is your homework, children. So that's it for this chapter, children. We will meet in the next class of science. Till then, bye and take very good care of yourself.